Good afternoon, everybody. My name is Shivli Sarkar. I am the owner of a Bhopal-based production house and assistant professor in the Department of Journalism and Mass Communication in Sri Vaishnav Institute of Journalism and Mass Communication. United College of Education, a A-grade college under the University of Guru Gobind Singh Indraprasth, has organized Unimobi Photo 2020, which is a online mobile photography contest. This contest has been basically organized to encourage the students to bring out their creative side and to give them a platform to showcase their talent. Due to the ongoing lockdown, the finale of the event could not have been done on the due date, but will be held on 12th of May 2020. So the students who are interested in giving their entries can still send their photos till 7th of May, and the result will be declared on 12th. So all the best and send in your entries. Today, I will be talking on the topic photography and the importance of lighting in photography. So, photography क्या है? ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट हर यूथ के लिए फोटोग्राफी आज एक ऐसा टर्म है जो कि बहुत ही पॉपुलर है गॉन आर द डेज व्हेन फोटोग्राफी वाज जस्ट अ हॉबी टुडे इट इज अ फुल फ्लेजेड करियर ऑप्शन देयर आर वेरियस कॉलेजेस इन द एंटायर वर्ल्ड जो कि फोटोग्राफी के कोर्सेज ऑफर करते हैं और हमें एक डिग्री देते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में फोटोग्राफी वैसे तो एक आर्ट फॉर्म है बट इफ यू आस्क मी आई विल से ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें थ्योरी का नॉलेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्रैक्टिकल नॉलेज है नो डाउट प्रैक्टिकली इस चीज को करना बहुत जरूरी है लेकिन थ्योरी सीखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि प्रैक्टिकल करना जरूरी है सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज फोटोग्राफी some terms related to it, some technicalities of it, what is lighting, how lighting is important, a few lighting techniques, some lighting equipments, and what role does lighting play? Is it only used to illuminate the subject, or there are other meanings of lighting as well? So I'll start off with what is photography. अगर सिंपल डेफिनेशन के थ्रू हम जाए तो फोटोग्राफी क्या है? इट इज बेसिकली कैप्चरिंग द लाइट टू ब्रिंग आउट द इमेज व्हिच वी आर सीइंग. तो लाइट का यूज करते हुए हम जो भी चीज देख रहे हैं उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना इस फोटोग्राफी. We all know that the word camera came from a Latin word, but do you know that the Latin word actually generated from an ancient Greek word which is camera, Kamara? This word meant a vaulted chamber. So, going through this meaning, we can say that camera is basically a vault which captures the light and then produces the image, right? So, camera का ये थोड़ा सा history था. Now, if we take the term photography and break it down, there are two words in it: photo and graphy. Which, if we translate, photo means light and graphy means painting. So basically, photography is nothing but painting with light. So where the definition includes light in it, so we can understand that how important light is in this particular thing. Moving on, when we talk about camera, there are many types of camera. But what we usually use nowadays are the DSLRs, which is digital single lens reflex. Earlier, there were TLRs and other sorts of camera as well. So, कितने भी टाइप ऑफ कैमरा हो जाए उनके मैकेनिज्म सेम रहते हैं. तो उनके हम अगर तीन बेसिक चीजों के बारे में बात करें विच इज यूज्ड फॉर ए परफेक्ट एक्सपोजर, देन दे आर एपर्चर, शटर स्पीड एंड द सेंसर और द ISO. सो व्हाट इज द एपर्चर? Aperture कुछ नहीं है, it is only the lens opening. It is a small hole, or it is a hole basically in the lens of the camera through which the light enters the camera body. Now this lens opening is also denoted by f number, and the size of this opening is inversely proportional to the number denoted by it. That is, अगर हमारा lens opening छोटा है तो उसका f number will be very high. But if हमारा lens opening बड़ा है, then the f number will be small. So basically, the size of the lens opening is inversely proportional to the f number. Now, what does this f number or the hole does? जब भी हम फोटो खींचते हैं तो डेफिनेटली लाइट हमारे कैमरे के अंदर जा रही है. अब अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसी डार्क एरिया में रखा हुआ है तो ऑब्वियसली हमको ज्यादा लाइट की जरूरत है. इन दैट केस द लेंस ओपनिंग विल बी ओपन लार्जर. दैट इज जो f नंबर होगा वो बहुत ही छोटा होगा.
बट अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक बहुत ही लाइटेड रूम में रखा हुआ है जहाँ पे प्रॉपर लाइट है, अवेलेबल है उस चीज को, देन हमारा जो एफ नंबर होगा वो बड़ा होगा और जो हमारा लेंस ओपनिंग होगा वो छोटा हो जाएगा. This thing is also used to create depth of field. I'll not go into that, but aperture is directly used to create depth of field. Second in the exposure list is shutter speed. Now, what is shutter speed? Shutter speed is basically the length of time for which light enters the body. अपर्चर ये डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगा और शटर स्पीड ये डिसाइड करता है कि वो अमाउंट ऑफ लाइट कितनी देर के लिए वहां अंदर रहेगा. इसका मतलब कि हमारा जो सेंसिटिव मटेरियल है अंदर, जो सेंसर है, वो कितनी देर तक लाइट उस पर कितनी देर तक लाइट एक्सपोज रहेगा. ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है. अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा लाइटेड एरिया में है, इसका मतलब उसको बहुत ज्यादा लाइट, मतलब कैमरा के मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा लाइट नहीं चाहिए उसको कैप्चर करने के लिए. इन दैट केस जो हमारा शटर स्पीड है उसको हम कम रखते हैं, उसको हम ज्यादा रखते हैं, मतलब कि हमारा जो शटर है वो कम देर के लिए ओपन होता है. लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक डार्क एरिया में है जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट उसको अवेलेबल नहीं है, तब हम शटर स्पीड को लो रखते हैं, यानी शटर जो रहता है वो ज्यादा देर के लिए खुला रहता है. बट इसमें हमको एक चीज ध्यान ये रखनी है कि जब हम शटर को ज्यादा देर के लिए खुला रखते हैं तो हमारा जो इमेज है उसमें शेक आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. तो बेसिकली अपर्चर और शटर का जो कॉम्बिनेशन है उसको हमको दोनों को बैलेंस करके यूज करना पड़ेगा एक परफेक्ट नॉन ब्लर या नॉन हेजी इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए. थर्ड इन दिस इज द आईएसओ. नाउ आईएसओ क्या है? आईएसओ या फिर अगर हम कहें सेंसर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या फिर उसको हम बेटर वर्ड में कहें तो एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो कि लाइट को कैप्चर करता है. सेंसर इज नथिंग बट अ light sensitive device which captures the light and converts it into a digital image. तो सेंसर हमारा जो पहले के जमाने में फिल्म कैमराज होते थे उसमें जो फिल्म काम करता था वही चीज अब डिजिटाइज होके सेंसर हो गया है. और सेंसर बेसिकली जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है सब्जेक्ट से, लेंस के थ्रू अंदर जाता है, शटर उठता है और वो सेंसर पे जाके टकराता है, और जितनी देर के लिए शटर खुला रहता है वो इतनी देर तक सेंसर पे पड़ता है और हमारा जो इमेज है उसको बनाता है. सो दिस इज व्हाट द सेंसर डज. अब सेंसर की सेंसिटिविटी भी डायरेक्टली ऑब्वियसली डिपेंड करेगी कि सब्जेक्ट पे कितना लाइट है या कितना लाइट नहीं है. अगर सब्जेक्ट पे काफी ज्यादा लाइट है तो हम सेंसिटिविटी लो रखते हैं, और अगर सब्जेक्ट पे लाइट बहुत कम है तो हम सेंसिटिविटी हाई रखते हैं. सेंसिटिविटी हाई रखने के पीछे एक ड्रॉबैक आ जाता है यहाँ पे कि अगर हमने बहुत ही लो लाइट में सेंसिटिविटी को या आईएसओ को बहुत हाई कर दिया तो हमारा जो इमेज है वो ग्रेनेट हो जाता है, उसमें ग्रेन्स आ जाते हैं और वो बहुत क्लियरली नहीं दिखता है फिर. सो बेसिकली हम हमेशा ये कोशिश करें कि हम हमारे एपर्चर और शटर के कॉम्बिनेशन को ही यूज करें हमारे इमेज के परफेक्ट एक्सपोजर के लिए. आईएसओ को हम तभी ज्यादा या कम करें जब बहुत ही हमारे पास लाइट की कमी है या फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, एक्सटर्नल लाइट्स का कोई सोर्सेस नहीं है. आईएसओ सिर्फ तभी अगर हम चेंजेस करें तो बेटर रहता है. बेसिकली ये तीन चीजें हैं कैमरा में जो हम जब सबसे पहले हम कैमरा समझते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही एक परफेक्ट इमेज को लाया जा सकता है. नाउ आई मूव कि व्हाट इज द रोल ऑफ लाइट इन फोटोग्राफी. हम सब ने बेसिक फिजिक्स में ये चीज पढ़ी है कि कैसे हमारे आईज को कोई भी इमेज दिखाई देती है. वो सिंपल सा लॉजिक है. लाइट जो है वो सब्जेक्ट पे टकराता है, टकरा के रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज में जाता है और फिर वहां से वो ब्रेन में जाता है नर्व्स के थ्रू, और ब्रेन हमारे को वो इमेज प्रोसेस करके दिखा देता है. सेम चीज कैमरे के साथ चलता है. सब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, इट गोज थ्रू द लेंस इनसाइड द कैमरा, रीचेस द सेंसर, और वहां जाके सेंसर जो है वो यहाँ पे ब्रेन का काम करता है और इस लाइट को या फिर लाइट रेज को एक डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देता है. ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि लाइट का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फोटोग्राफी में. लाइट के बिना हम सब्जेक्ट्स को दिखा ही नहीं सकते, और मतलब लाइट के बिना फोटोग्राफी पॉसिबल ही नहीं है, उसकी टर्म में ही हम ये चीज समझ सकते हैं. बट लाइट का सिर्फ फोटो या सब्जेक्ट को दिखाना ही एक काम नहीं होता है, और भी दूसरे रोल्स होते हैं. वील कम बैक टू दैट लेटर. तो लाइट इल्यूमिनेट करने के अलावा और क्या क्या चीज करता है? लाइट हमारे सब्जेक्ट में एक शैडो और एक डार्कनेस या ब्राइटनेस दोनों को क्रिएट भी करता है.
अगर हम बात करें कि लाइट के क्वालिटीज या टाइप क्या है, नेक्स्ट जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि लाइट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अगर नेचुरल लाइट की बात करें तो उसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है हमारा सन। सन इज द बिगेस्ट, लार्जेस्ट एंड द ओनली सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट। बट देन अगर हम आर्टिफिशियल लाइट सोर्स की बात करें तो आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे कि हमारे पास एलईडीज है, फ्लड लाइट्स है, स्टूडियो स्ट्रोब्स है, फ्लैश लाइट्स है। ये सारे एक्सटर्नल आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज है जो कि हमारे स्टूडियो फोटोग्राफी या इवन आउटडोर फोटोग्राफी को करने में हेल्प करता है। अब लाइट जो है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि लाइट हार्ड लाइट होती है, सॉफ्ट लाइट होती है। सनलाइट जो है वो डे के टाइम के अकॉर्डिंग हार्ड या सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि सन एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ऑब्वियसली हम ना उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ना हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो सनलाइट के साथ बेसिकली हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी फोटो नहीं खींच सकते, हमें सनलाइट और टाइम और डे के अकॉर्डिंग ही फोटोग्राफ्स खींचने पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स का रोल आता है, जिनको हम अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको शेप दे सकते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं, उनका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, और फिर हम हमारा मनचाहा फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो अभी जो मैंने बात की थी हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट की, इन दोनों का भी एक बहुत ही मेजर रोल हो जाता है फोटोग्राफी में। हार्ड लाइट जनरली हम तब यूज करते हैं जब हमको एक प्रोडक्ट का फोटोग्राफ खींचना हो, जिसको हमको पूरे हर एंगल से दिखाना है, जैसे बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लुक नहीं देना है, तो हम वहां पे हार्ड लाइट का यूज करते हैं। बट सॉफ्ट लाइट जो है वो एक आपके इमेज में एक सटलनेस दिखाता है, एक कामनेस दिखाता है, और सॉफ्टनेस से बेसिकली हम इमेज को बहुत सुंदर दिखा सकते हैं, अच्छा दिखा सकते हैं। बट देन अगेन दोनों लाइट्स के अपने अपने यूजेस है अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट है। अब लाइट की कुछ क्वालिटीज होती है, ये होती है उसकी इंटेंसिटी, उसका कलर, उसका डायरेक्शन। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी इज बेसिकली कि लाइट कितना तेज है या कितना कम है। हमें अगर किसी सब्जेक्ट पे लाइट डालना है, उस पर हमें कितनी लाइट रिक्वायर्ड है, ये है उसकी इंटेंसिटी, मतलब कितनी तेज लाइट आ रही है। कलर हमको पता है, कलर या फिर उसका जो टेम्परेचर होता है, वो कामनेस में आ रहा है, वो हीट में आ रहा है, वो किस कलर का है, वो कौन सा मूड क्रिएट कर रहा है। डायरेक्शन इज अगेन कि हम उसको किस एंगल से दे रहे हैं। हम अगर किसी सब्जेक्ट पे एकदम सामने से लाइट डाल रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, किसी सब्जेक्ट पे अगर हम साइड से लाइट डाल रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, टॉप एंगल से डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, लो एंगल से डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है। इनफैक्ट हर एंगल से जब हम लाइट डालते हैं, हर एक एंगल एक अलग अलग चीज कम्युनिकेट करती है। तो डायरेक्शन भी लाइटिंग में बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं, इनको हम नेचुरल लाइट में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सनलाइट का ना तो हम इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही हम ना हम उसका इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, और ना ही हम उसका कलर कंट्रोल कर सकते हैं, ना उसका डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। ये तीनों चीजें सनलाइट की ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द डे एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज होता रहता है। But then if we talk about artificial light, then we can control all these three things in the artificial light and take out the outcome whichever we want according to our needs and requirements. सो ये होती है लाइट, टाइप्स ऑफ लाइट और उसके क्वालिटीज। अब ये जो हमारे पास जो आर्टिफिशियल लाइट है, इनको हम इनका हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, पोजीशन हिला सकते हैं, और एक और जो चीज कर सकते हैं वो है मैनिपुलेशन, जो कि मैंने कहा। अब ये मैनिपुलेट करने के लिए भी हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम सॉफ्ट बॉक्सेस यूज कर सकते हैं। ये सॉफ्ट बॉक्सेस हमारे लाइट के सामने लग जाते हैं और फिर हमारे लाइट को एक इवन टोन दे देता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। हम अम्ब्रेलाज यूज कर सकते हैं, हम फ्रेशनर्स यूज कर सकते हैं, हम डिफ्यूजर्स यूज कर सकते हैं, और एक और जो चीज हम यूज कर सकते हैं वो है रिफ्लेक्टर। अब रिफ्लेक्टर एक ऐसी चीज है जो कि हम सनलाइट का एटलीस्ट डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आजकल जो रिफ्लेक्टर्स ऐसे भी आते हैं जो सनलाइट का थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा या कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो लोग फोटोग्राफी करते हैं जिनने रिफ्लेक्टर्स देखे हैं, उनको ये पता होगा कि उस रिफ्लेक्टर के पैक में एक सिल्वर कोटिंग वाला आता है, एक गोल्डन कोटिंग वाला आता है। अब ये दोनों का अलग अलग यूज कैसा है कि मानिए कि अगर आप बाहर शूटिंग कर रहे हैं आउटडोर पे एंड द वेदर इज क्लाउडी, there is not much sunlight, then you can use the golden coated reflector. This will intensify the light coming from the sun और आपके सब्जेक्ट पे ज्यादा लाइट
देगा। सो सन की लाइट को हम रिफ्लेक्टर का यूज करते हुए डायरेक्शन दे सकते हैं और कुछ हद तक उसकी इंटेंसिटी को भी हम चेंज या मैनिपुलेट कर सकते हैं. Okay, so next, when we talk about lighting, there's one more thing which is very common and is very useful in studio lighting technique, that is 3-point lighting. Most of the people must know 3-point lighting क्या होता है, एंड उसके बारे में पर जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ. 3-point lighting is basically, I'll read out a definition which I got somewhere, which I thought is very informative and very nice. It is about creating a 3-dimensional look by placing 3 light sources at strategic points around the subject. Each light source illuminates a separate dimension of the subject and creates an image with greater representation of height, width and depth. ये डेफिनेशन बेसिकली ये कह रहा है कि 3-point लाइटिंग जो है वो एक स्ट्रैटेजिक लाइट प्लेसिंग है जिससे हमारा जो सब्जेक्ट है उसको एक 3-डायमेंशनल लुक मिल सके, एक डेप्थ मिल सके. इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइटिंग में हम 3 लाइट सोर्सेज यूज करते हैं और उनको स्ट्रैटेजिकली ऐसी जगहों पे प्लेस करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो तीनों डायमेंशन से उभर के आ सके. अब ये 3 लाइट्स कौन सी है जो 3-point लाइटिंग में यूज होती है? पहला है द की लाइट. की लाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट इन 3-point लाइटिंग. एंड दिस लाइट इज बेसिकली अ हार्ड लाइट जो कि एक हार्ड शैडो क्रिएट करता है और ये मेन लाइट होता है जो कि हमारे सब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करता है या लाइटेड करता है. जो की लाइट है वो हमारे सब्जेक्ट, मानिए अगर मैं सब्जेक्ट हूँ तो की लाइट जो है मेरे सामने 45 डिग्रीज एंगल पे रखा जाएगा, ऐसा कि वो मेरे फेस के इस पोर्शन को लाइट अप करेगा और ऑपोजिट साइड पे एक हार्ड शैडो क्रिएट. तो की लाइट जो है अगर हम सिर्फ की लाइट का यूज करते हैं तो वो बहुत ही ड्रामेटिक सा इफेक्ट दे देता है कि एक क्या कहेंगे इंटेंस सा लुक देता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर. तो की लाइट बेसिकली 45 डिग्री एंगल पे रखा जाता है और हार्ड लाइट होता है और सब्जेक्ट को फ्रंट से मतलब साइड से लाइटेड करने के लिए यूज होता है. की लाइट के बाद सेकंड टाइप ऑफ जो लाइट इसमें यूज होती है वो है फिल लाइट. फिल लाइट जैसे कि नाम से पता चल रहा है वो किसी चीज को फिल कर रहा है. तो की लाइट से जो कि शैडो क्रिएट हुई है वो फिल लाइट शैडो को हटा देता है. अब फिल लाइट जो होता है वो एक सॉफ्ट लाइट यूज होता है. अगर वो भी हम हार्ड यूज कर देंगे तो दोनों तरफ से सब्जेक्ट पे ब्राइट लाइट्स पड़ जाएंगी और वो एकदम सब्जेक्ट में फ्लैट लुक दे देगा, कहीं से भी 3-डायमेंशनल लुक नहीं आ पाएगा. तो जो फिल लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू की लाइट हमेशा कम होती है. वो एक सॉफ्ट लाइट होती है और वो सिर्फ और सिर्फ जो की लाइट का शैडो है उसको हटाने के लिए यूज होता है. बेसिकली जब हम एक तरफ से की लाइट देते हैं और दूसरी तरफ से फिल लाइट देते हैं तो हमारा जो इमेज है वो एक तरफ से एकदम ब्राइट लाइटेड रहता है और दूसरी तरफ से हल्का सा एक सॉफ्टनेस आ जाता है. तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो फीचर्स होते हैं फेस के या सब्जेक्ट के उनको उभारता है. इट टेक्स देम आउट. The third light in 3-point lighting is the backlight. Now, what is the backlight? The backlight is placed above the subject at a top angle and is given from a top angle and is basically used to illuminate the head and the shoulder areas of the subject. Backlight जो है वो subject को background और मतलब सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है कि जब हमारे वो लाइट ऊपर से मिलता है और हमारे हेड और शोल्डर पे एक लाइन दे देते हैं जिससे कि बैकग्राउंड के साथ जो हमारा सब्जेक्ट है वो मर्ज ना हो जाए. तो बैकलाइट बेसिकली सब्जेक्ट को पीछे से लाइट अप करता है और उसको बैकग्राउंड से डिफरेंशिएट करता है. 3-point लाइटिंग में की फिल और बैकलाइट यूज होता है. इसके अलावा स्टूडियो में एक और लाइट यूज होता है वो होता है बैकग्राउंड लाइट. बहुत बार हम बैकलाइट और बैकग्राउंड लाइट में कंफ्यूज हो जाते हैं मगर ये दो अलग अलग चीजें हैं. बैकलाइट जो है वो सब्जेक्ट को पीछे से लाइट देता है लेकिन जो बैकग्राउंड है वो जनरली बैकग्राउंड को लाइट अप करने के लिए होता है क्योंकि ये जब भी हम किसी सेट में है उसमें हमारे सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें उसके आगे पीछे होती है. तो सब्जेक्ट के पीछे जो ऑब्जेक्ट्स है उनको जो लाइट अप करता है उसको बैकग्राउंड लाइट कहा जाता है. तो बैकलाइट और बैकग्राउंड लाइट आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स एंड आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. So this was 3-point lighting, and 3-point lighting is very much used in studios. जब हम अगर हम वीडियो की बात करें तो 3-point lighting जो है वो इंटरव्यूज में, टॉक शोज में जनरली इन जगहों पे यूज होता है. या फिर अगर कोई एक एंकर है जो बात कर रहा है
तो उसके ऊपर भी मोस्ट ऑफ द टाइम 3 पॉइंट लाइटिंग ही दी जाती है। बहुत से आर्ट फिल्म में और मूवीज में भी 3 पॉइंट लाइटिंग का यूज किया जाता है, और इससे बेसिकली एक ड्रामेटिक लुक आ जाता है। या अगर हम कोई भी नॉर्मल लाइट ले और उसको बाउंस कर दे तो एक इवन टोन जरूर आ जाएगा, लेकिन वो आपके सब्जेक्ट में कोई ड्रामेटिक लुक नहीं दे पाएगा, वो बहुत ही इवन सा लुक दे देगा जो काफी बोरिंग दिखता है। तो हमारे सब्जेक्ट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम बेसिकली 3 पॉइंट लाइटिंग का यूज कर सकते हैं। सो आई मूव फर्दर नाउ। तो अभी तक हमने ये बात करी कि कैमरा क्या है, उसके फंक्शनिंग्स कैसे है, और किस तरह से लाइट का यूज होता है फोटोग्राफी में, और लाइट क्या क्या करता है। लेकिन क्या लाइट सिर्फ हमारे सब्जेक्ट को लाइट अप या उसको दिखाने के लिए ही यूज होता है? वेल नॉट। लाइटिंग जो है वो सब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने से ज्यादा हमारे इमेज में मूड क्रिएट करने में हेल्प करता है। जी हाँ, लाइट जो है वो हमारे सब्जेक्ट का टेक्सचर उभार के लाता है, वो हमारे सब्जेक्ट का या हमारे इमेज में जो हम कहना चाहते हैं उसको समझाने के लिए हमको ज्यादा बेटर ऑप्शन देता है। वी ऑल नो दैट फोटोग्राफी इज नथिंग बट टेलिंग अ स्टोरी। एवरी इमेज हैज इट्स own story, and while a photographer is capturing something, he's not just randomly clicking photographs. He or she is basically capturing a story which they want to tell through their lenses. So while telling a story, it is very important to portray the perfect mood of that story. Unless and until the correct mood is portrayed, maybe the story you're telling through your photograph might not convey the same message that you intended to. सो लाइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है आपके फोटो का मूड क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो फोटो है वो उसमें बहुत ब्राइट लाइट्स है और सारी चीजें बहुत ही अच्छे से इल्यूमिनेटेड है, अच्छे से दिख रही है हमको, तो ऑटोमेटिकली वो एक बहुत ही हैप्पी मूड हमको सजेस्ट करेगा। लेकिन अगर हमारा जो इमेज है वो डल है, वो डार्क है, उसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट टोन दिया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली एक सैडनेस को डिपिक्ट करेगा। आप नोटिस करना कि जब भी हम स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं और हम बेगर्स की फोटो लेते हैं या फिर हम सोसाइटी की किसी भी डार्क साइड को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स उसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट टोन को यूज करते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट टोन और कुछ नहीं है बट कलर और लाइट का यूज करते हुए अपने स्टोरी को एक मूड देना है। वहीं पे जब हम लैंडस्केप्स की फोटो लेते हैं या फील्ड्स की फोटो लेते हैं, फ्लावर्स की फोटो लेते हैं, हमेशा वो कलर रहते हैं और ब्राइट कलर्स में रहता है क्योंकि वो हैप्पीनेस को डिपिक्ट करता है। तो लाइट जो है वो मूड को क्रिएट करने में, मूड को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और उससे हमारे सब्जेक्ट में एक अलग टाइप का ही चेंज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट का जो अब लाइट को हम तीन वे मतलब दो तीन तरीके होते हैं जिससे हम चेंज करके हमारे सब्जेक्ट का मूड क्रिएट कर सकते हैं। तो वो पहला हो जाता है उसका पोजीशन। लाइट का पोजीशन बहुत मैटर करता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस तरह का मूड क्रिएट कर रहा है या किस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सिटिंग राइट हियर एंड आई प्लेस अ लाइट जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, then it will light up my face, it will show my entire face, my entire body, but it will give a very flat look. सो सामने से जब हम किसी सब्जेक्ट पे डायरेक्ट लाइट डालते हैं, वो भी अगर हम हार्ड लाइट डालते हैं, इवन अगर सामने से हम सॉफ्ट लाइट भी डालते हैं, तो हमारे सब्जेक्ट को बहुत ही फ्लैट लुक दे देता है। एकदम मतलब उसमें कोई भी फीचर निकल के नहीं आता है। पर वही सेम लाइट सोर्स को अगर हम एक डायरेक्शन दे दें, उसका एंगल चेंज कर दें, तो वो लाइट सोर्स हमारे सब्जेक्ट को एक एक डायरेक्शन से लाइट देता है और एक ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट कर देता है। क्योंकि फिर क्या होता है, हमारे इमेज में डार्कनेस और लाइटनेस, मतलब लाइटेड जो एरिया है वो दोनों आ जाता है, तो बेसिकली कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाता है। तो जब एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है तो जो हमारा इमेज है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। सो उसका पोजीशन चेंज करके हम कर सकते हैं, और इसके अलावा हम लाइट को शेप कर सकते हैं, लाइट की शेपिंग कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? हम फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, हम नेट यूज कर सकते हैं, हम कलर्ड जिलेटिन पेपर्स यूज कर सकते हैं जिससे कलर्ड लाइट निकल के आ सके। कुछ यूनिवर्सल कलर कोड्स होते हैं, जैसे रेड जो है वो एंगर को दिखाता है, ब्लू जो है वो कामनेस को दिखाता है, ब्लैक जो है वो डल या डार्कनेस को दिखाता है। ऐसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो कलर्स हैं, उन कलर्स का यूज करते हुए हम लोग लाइट को वैसा देख के
हमारे इमेज में स्टोरी टेलिंग को और एनहांस कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे टेक्निक्स और आ गए हैं जिससे हम उस वक्त ना करके बाद में एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इफेक्ट डाल सकते हैं। लेकिन एक फोटोग्राफर के लिए या एक फोटोग्राफी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है कि इन लाइटिंग टेक्निक्स को वो जाने और इनको सीखें, तभी उनका जो टैलेंट है वो और बेटर वे में बाहर निकल के आ सकता है। तो इस तरह से हम लाइट का यूज कर सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं, उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और हमारे स्टोरी टेलिंग को और बेटर बना सकते हैं। सो I think that's all I would like to say. So what I'll just recap what all I just discussed today. I started off with what is photography, a small definition of it, a little history about how the word camera came. Then I discussed what is aperture, shutter speed, and ISO or the sensor. Post that, I talked about how light is used by the camera to capture images. Then I talked about lights, types of light, 3-point lighting, what are the different methods which can be used to manipulate light. And then lastly, I discussed how light plays a role in storytelling, in creating mood, and how light is used in other ways, and how it is important for photography. So that's all for today. And if anybody has any question, they can leave it in the comment, and I'll try if I can answer them. And also, since explaining photography is quite difficult without showing visuals and images, so I've prepared a small video discussing these same things which I've discussed right now, but with the help of some images as well. So after this video ends, the after this communication ends, that video will be uploaded on the page. So anybody who wants to know or want to see it with the images might go and check out that video, and it will be very useful. Okay, so I have a question. Somebody is asking rule of third. All right. इसके लिए basically क्या होता है? Composition होता है. Composition is what? How we arrange our elements in a frame. So rule of third is basically one of the composition rules. This rule says that when we click an image, we divide it into three halves, uh, three vertical halves, and whichever portion is coming into the two halves of that frame, that becomes the main type of photography. For example, अगर हमको लैंडस्केप खींचना है या हमको लैंडस्केप खींचना है, तो हम हमारे इमेज के 3/4 मतलब 1/3 एरिया को छोड़ देंगे और बाकी पूरा एरिया लैंड दिखाना चाहिए। मतलब सिर्फ 1/3 एरिया में लैंड नहीं होना चाहिए और बाकी के पूरे एरिया में लैंड होना चाहिए। तो दैट इज द रूल ऑफ थर्ड। Then there is one question: is there any golden rule of lighting? Well, I'll say only one thing कि photography में हम theory जरूर पढ़ते हैं लेकिन सारे rules as such follow कभी हो नहीं पाते. But yeah, if we follow those rules, then obviously हमारे photos और अच्छे दिखने लगते हैं. But lighting के कोई as such rules तो नहीं होते हैं, because lighting is basically creating, making your photograph more creative. So I don't think there are any as such basic golden rules of lighting, जैसे compositions के या हमारे camera angles के rules होते हैं. Lighting के rules, or maybe not in my knowledge still now. Okay, there's this question: is reflector necessary in photography? See, this is something according to you. अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं और आपका जो सब्जेक्ट है वो ऐसी जगह पे बैठा है
मतलब आप अपने सब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, और वही बैकग्राउंड चाहिए आपको जहाँ पे आपने अपने सब्जेक्ट को बिठाया है, और लेकिन जो लाइट है वो आपके ऑपोजिट में है, या आपके दूसरे तरफ, मतलब लाइट आपकी नेचुरल लाइट आपके सब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा है, इन दैट केस रिफ्लेक्टर यूज करना पड़ता है। बट देन अगर आपने अपने सब्जेक्ट को जहाँ प्लेस किया है वहां पे लाइट प्रॉपर आ रही है, देन रिफ्लेक्टर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। रिफ्लेक्टर इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली reflecting the natural light source and sending that reflection towards your subject. तो रिफ्लेक्टर का यूज हम तब करेंगे अगर हम हमारे सब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमको हमारे, और लाइट, क्योंकि नेचुरल लाइट को भी हम चेंज नहीं कर सकते, तो नेचुरल लाइट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम रिफ्लेक्टर यूज करते हैं। अदरवाइज अगर आप सब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर सकते हो तो फिर रिफ्लेक्टर का कोई यूज नहीं होता है वहां पे। Okay, so I'll end the video now. And if you have any other questions, you can leave it in the comment or on the video which will be uploaded. And I'll try my level best to come out with answers. Thank you so much. It was really a good, this was a really good experience sharing all this with you all. Thank you.